SKU classes. Myself Dr. Akash Singh. I am going to deliver my lecture in the topic of Introduction to Horticulture. First of all, what is horticulture? It's mean उद्यान विज्ञान या उद्यान से संबंधित चीज़ें हैं क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। ये इंडस्ट्री एंड साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, मतलब प्लांट का ग्रोइंग करना, उसको इंडस्ट्री लेवल पे ग्रो करना एंड वैज्ञानिक टेक्निक से ग्रो करने की स्थिति को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट इट्स मीन जो हॉर्टिकल्चर पे वर्क करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलेंगे। वह किस पार्क में किस तरीके से क्या रिसर्च कर रहा है इसके बारे में जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, प्लांट प्रोडक्शन, प्रिपिगेशंस, कल्टिवेशंस, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके माध्यम से हम प्लांट्स का कल्टिवेशन करना, नई नई तकनीक्स को यूज करने की प्रोसेस पूरा क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। यह वर्क क्या है, फ्रूट में भी इन्वॉल्व होता है, वेरीज में भी इन्वॉल्व होता है, एंड नट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, ट्रीज, herb, shrubs and most of the crops are including in the horticulture science. Now we are going to the study of the history of the horticultures. So first of all, L.H. Wiley, now the standing of Liberty, Hayes and Wiley. He was the working on as a horticulture crops in, now he was registered as a American scholars in working on the horticulture crops. They are also considered in the father of horticulture crops. In term of horticulture, division to Latin word horti and cultures. Culture means mean cultivation, it's mean a cultivation of the any crop, and horticulture field crops, not including in the vegetables and fruit crops also. So definition is horticulture. What is the definitions of horticulture? I mean the horticulture is broadly defined in the science and art, growing the fruit, vegetables and flowers, crop just like spices and considered and plantations crop also. It's mean a cultivation of garden plants. We are I am telling about of the garden crops, just like a flower, a little flower is also growing in the tennis gardens, vegetable gardens, and growing to the housekeeping working, as well as now we study about the horticulture plants. So what is horticulture? Is divided in the little word in hortus and meaning of the enclosure, garden, and culture meaning is the cultivation of the plants. So it means garden and cultivations, मतलब कि गार्डन को डेवलप्ड करने की स्थिति में हम किसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। इट्स मीन उद्यान विज्ञान। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, देयर आर 3 branches. फर्स्ट ऑफ ऑल pomology, main branches is the pomology, oleoculture and floriculture. Pomology it's mean a fruit crops, oleoculture it's mean a vegetable crops, and floriculture it's mean a flower and plant crops. Spacings it's mean. And sub branches is ornamental gardening. We are studying in the ornamental gardening and landscaping gardening, also in nursery plant production is also. So including is the sub branches in horticulture crops. So there are main branches and sub branches. It's mean first of all pomology as well as fruit crops, just like guava, chilies, etc. Role of horticulture in human nutrition. Now we are telling about of the horticulture crops, मतलब इट्स मीन है हमारे ह्यूमन कंज्यूमेशन में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का क्या रोल है, कितना विटामिन्स, कितना प्रोटीन्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ऑर्डिनेट कंडीशन में कैसे कैसे डेविएट है, इसमें क्या योगदान है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। सो हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन का। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का होता है पर डे, मतलब जो प्रतिदिन प्रत्येक दिन हम क्या खा रहे हैं उसमें। जैसे वेजिटेबल, ये हॉर्टिकल्चर ब्रांच से हमें मिला, हमने कोई भी चीज़ ली, विटामिन मिनरल्स लिए, सारे के सारे रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। कहीं ना कहीं इनका यूजेज हमारे पर्टिकुलर क्रॉप्स में है। जैसे वेजिटेबल आ गया, फ्रूट्स आ गया, और विटामिन मिनरल्स आ गए। ये चीफ सोर्स, देयर आर सो मेनी चीफ सोर्सेज इन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। vitamins, so vitamins in consisting of the vegetable, fruits and vegetables and indispensable part of the human diets, also required a very minutes quantities, मतलब छोटे अमाउंट्स में यूज करेंगे लेकिन हाई एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। जैसे वेजिटेबल है, लिटिल अमाउंट में यूज किया जाता है लेकिन वह क्या है, हमें हर एनर्जी को, हर टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस या प्रोवाइड कराता है। जैसे विटामिन की बात करें, विटामिन ए एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोइंग, विटामिन बी एसेंशियल फॉर, B1 में एसेंशियल फॉर टोनिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जैसे कि और भी कई कंडीशन में आता है। जैसे नेक्स्ट है विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, यह विटामिन हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए यूज होता है।
विटामिन सी, ascorbic acid, just like citric acids वगैरह, they also considered in the citric acid and lamine etc. Now vitamin D is the very necessary vitamin for building up the bones and rickets and diseases of teeth. मतलब कि दांतों में जब दर्द या दांतों में किसी प्रकार का रोग होता है तो हम विटामिन डी की, मतलब डॉक्टर भी हमें प्रिकॉशन करता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है. तो ये just role of the horticultures. Now we are going about of the minerals. What is minerals? Minerals is mean just like a maintenance of health consumptions, just like P, Ca, irons, potassium, carbohydrate, carbons, irons etc. इनका सोर्सिंग मेन सोर्स है एसिटिक एसिड, ऑरेंज है, डाइट ड्राइव्स और वुड एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स में कैबेज, ग्रीन बीन्स, कैरेट, ऑनियंस एक्सेट्रा एंड टोमेटो आर जस्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग अबाउट ऑफ द मिनरल्स. सोर्सिंग है तब एनिमल्स में टोमेटो है, पालक, मेथी, कैबेज एंड विटामिन डी वाला कंडीशन आ जाएगी. प्रोटीन्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स में बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द फूड एंड एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग एंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन वी आर ऑन द बॉडी केसेस रिलेटेड टू द ग्रोथ इंक्रीज इन सस्टेबिलिटीज डिजीज एंड द केस ऑफ द लेट्स इट्स मीन अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो वह हमारे बॉडी के अपार्ट्स में क्लियर कट स्टेटस में समझ में आती है. तो इनका सोर्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आल्सो लो प्रोटीन्स, जस्ट लाइक एक्सेप्टेड गुआवा एंड बनाना. बनाना इज एक्सेप्टेड ऑफ द लो क्वांटिटीज इन द प्रोटीन्स. तो it's as well as and vegetables just like pea and beans are also rich of the protein. So we are considering about of the proteins etc. in vegetable purpose. एंजाइम्स की बात करें तो ये हमारे एंजाइम्स जो बॉडी में एंजाइम्स पाया जा रहा है वह क्या है? वो किसी वेस में हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप से प्राप्त होता है. जैसे वो क्या करता है? कंट्रोलिंग करेगा सेवरल मेटाबॉलिक्स. यदि इन केस ऑफ द एनी एक्टिविटीज पपाया, प्रोटीन्स एंड पाइनएप्पल्स, ये एंजाइम्स को क्या करते हैं? हमारे एंजाइम्स को जो बॉडी में एंजाइम्स को एक्सेप्ट करेंगे और जितनी भी प्रोसेस होगी एंजाइम की कैटालाइज करने की प्रोसेस, ये सब इसके थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं. कि तो हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जस्ट लाइक जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इनका तो यूज पर डे में करना ही करना होता है. नाउ वी आर स्टडी अबाउट इन द रोल ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, वेदर एंड एनवायरमेंट इन हॉर्टिकल्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेसिंग इन वाटर एबिलिटी. नाउ साइट सिलेक्शंस. साइट सिलेक्शंस में सब फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे हम क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर, लाइट, विंड, फॉरेस्ट एंड रेनफॉल. दे आर सब ऑर्डिनेटिंग कंडीशन इन साइट सिलेक्शन. नाउ ऑथराइज इन कंडीशन इन सॉइल, एसेबिलिटी ऑन द एरिया, लेबर एबिलिटी एंड नेसेसरी ऑन मार्केट, वाटर. सो दे आर द साइकिल expressing about the role of in horticulture crops in first of all climate, soil, in accessibility, in water ability and nearest to market and labor abilities. It's mean climate का क्या रोल है, soil का क्या रोल है, टोपोग्राफी का क्या है, टोपोग्राफी का क्या रोल है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, एरिया की कितनी आवश्यकता है, इसमें कितना लेबर चाहिए और कितना मार्केट में इसका प्रोड्यूस है. तो ये सारा रोल किस पर सिलेक्शन हुआ? साइट सिलेक्शन पर सॉल्व होता है. तो ये दैट इज द रोल ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, वेदर एंड एनवायरनमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप. इट्स मीन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में साहब का कितना क्या अहमियत है, ये एक्सप्रेस इस स्लाइड के थ्रू किया जा रहा है. प्रोपगेशन मेथड. प्रोपगेशन मेथड मतलब मल्टीप्लिकेशन. एनी वन प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द हाईली प्रोपलोगेटेड. इट्स मीन जस्ट लाइक अ रोज. रोज इज द फ्रूट प्लांट्स. कटिंग रोज में हम आप नॉर्मली वे में देखते हैं कि छोटे छोटे से बड निकलते हैं. ये क्या है? व्हाट इज द बड? बड इज द मेथड ऑफ प्रोपगेशन. मतलब इट्स मीन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स. मल्टीप्लिकेशन से मतलब होता है कि एक प्लांट से कई प्लांट्स का बनना. उसको हमने वहाँ से ब्रेक किया और उसको अलग एनवायरनमेंट दिया. ही बिकम अ न्यू प्लांट्स. दिस प्लांट इज बिकम ऑफ द न्यू प्लांट्स. न्यू प्लांट्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल जस्ट लाइक इन द मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन ब्रॉडली group into two groups. That is the plant propagate method in two groups, sexual and asexual. That is a asexual method. Now we consider about of the asexual method. First of all, rhizome, collar and stolons. Any one part in plants cut and grow in next session. They become the new plants. Now the next slides. Stolon. This part and this part. This whole plant is divided in the four parts, and
4 part is capable for become a new plants. So that is the method of asexual propagation. This slide is also growing. Now we are studying about, first of all, root tuber soluble. Root, it's mean this part is stem and this part is going on the root condition. Root condition, it's mean a जड़. जड़ से नया प्लांट बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? Asexual propagation method. Now last slides I am going to deliver in rose plants. Rose, it's mean that's a part of bud. And break in condition of, it's mean a break and growing to the new plants in hardwood cutting. You can see about of the what is the hard growing method. That is a simple method of asexual method. In Podina, going to the Podina. Young plants also produce in the new short plants, but that is not young plant, that is plant is young plants. Propagation by leaf cuttings. Leaf cutting is the leaf in bud cutting. Leaf cutting मतलब Bryophyllum is the plant. अजूबा का plants होता है, अजूबा का जो normally plants बोलते हैं उसके हम पत्तियों से एक नया plant बनाने की capability रखता है. That is a asexual method. Is not a propagating method in male and female zygotes, and they are not capable for fusion condition and growing to the seed and propagate of the method of the seed conditions. Layering, grafting, budding also, that is the simplest method of asexual methods. Training and pruning. Training refer the joint discondition, removal and the parts and develop proper shape of plant capable for the heavy crops and pears. That is the simplest method is कटाई and छटाई. हिंदी में इसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग को कटाई, प्रूनिंग को बोलते हैं छटाई. तो क्या मेथड है? मतलब ट्रेनिंग से मतलब है कटाई. हमने जो प्लांट्स, जैसे हमारा कोई पौधा है, छोटा पौधा है, हमने उसको छोटे से हाइट बढ़ाने के लिए हमने उसके नीचे नीचे की कटाई करते गए, वह अल्टीमेट कंडीशन में बड़ा पौधा होता जाएगा. सो दैट इज द रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड छटाई. कटिंग मतलब होता है कटाई छटाई. दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, अर्ली ग्रोइंग इन प्लांट्स. What is the useful of plant growth regulator in horticulture crops? So what is the PGR? First of all हम PGR के बारे में बात करेंगे. PGR से मतलब होता है हार्मोन्स, ग्रोथिंग हार्मोन्स. प्लांट्स में 3 टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिब्रेल, ऑक्सिन एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड इन हार्मोन्स. हार्मोन्स इज द ग्रीक एंड ड्रिफ्ट वन, हार्मो एंड साइमुलटेट. व्हाट इज द phytohormones used in the plant hormones. Plant growth regulator is the organic compound and nutrient which modify the physiological process. So it's mean हार्मोन्स का रोल है. यदि प्लांट्स को किसी भी कंडीशंस में ग्रोथ करना है, अलग अलग पार्ट में ग्रोथ करेगा प्लांट्स ऑलरेडी कैटेगराइज इन 4 पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्रूट. यदि प्लांट्स में स्टेम बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग वर्किंग कर रहा है. मतलब मिनरल्स, दे आर इंक्लूडिंग इन मिनरल्स एंड दे कैन प्रोड्यूस ऑफ द इन आवर बॉडी जस्ट लाइक अ फ्रूट कंडीशंस. सो द रोल ऑफ द प्लांट हार्मोन्स इन वेरी बिग सोर्सेज इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. सो हमारे जीवन में या हमारी दैनिक प्रतिक्रिया में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है, हमने इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की. और मिनरल्स का क्या रोल है, पीजीआर का क्या रोल है, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर का क्या कंडीशन रहती है, और कैसे मिनरल्स हमारे शरीर तक प्राप्त होते हैं. इसमें प्लांट और वेजिटेबल्स और क्रॉप्स कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितना ह्यूमन कंज्यूमेशन में इनका क्या रोल है, इसके बाद इस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोगों ने जानने की कोशिश की. और आशा करते हैं कि और अगली स्लाइड्स में हम इसके अगले स्टेप के बारे में आपको रखेंगे. धन्यवाद.